Hello students, we are going to study chapter 1 of class 9, that is matter in our surroundings, right? And it is one of the most basic chapter of this course, right? So let's start. Matter in our surroundings, students, everything what you see, we all live in a physical world, and each and everything around us is made up of matter. Okay, the air we breathe in, the chair on which you are sitting, okay, the mobile phone or laptop which you people are having, all these things are made up of matter. So let's go through NCRT readings, and whenever I would like, I would think that something should be added to enrich your knowledge, we will. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is made of matter, right? We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, right? इसका मतलब क्या है? यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है मैटर का. Everything which is matter, which is having, what is matter? Everything which is having mass, okay? And everything which is having mass, which is matter, that is occupying some space, all right? Even air is occupying space. The best example is when you fill the air inside a balloon, it expands, right? It swallows up. That is volume and have mass. So matter का मतलब क्या हो गया? Anything which is having mass, it occupies volume, that can be defined as matter. Okay. When you are studying through this lecture, means you should have a pencil and an NCRT book in your hand. Whenever you think, you should note down the thing, you should note down. Whenever you think, you should underline, you should underline. Okay. Yeah. Fine. This was about introduction of matter. Since early times, human beings have been since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Each Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. The Panch Tattva, initial we are having a saying in our ancient Indian mythology that Shiti Jal Pavak Gagan Samira Panch Tattva se bana sarira, right? This is a saying in Hindi, right? इसका मतलब क्या है? Shit means soil, Jal water, Pavak fire, Shit Jal Pavak Gagan sky, and Samir air, right? So Shit Jal Pavak Gagan Samira Panch Tattva, these were considered as the 5 basic elements. But today in our developed sciences, we all know that we are having 118 elements in total in our periodic table, starting from the big hydrogen ending to the alanoctium, that is atomic number 118. So these are not the 5 these are not the 5 basic elements, okay, as per today's knowledge. So our knowledge in science keeps on upgrading. इनिशियल टाइम्स में हम 5 एलिमेंट मानते थे, आज हम 118 एलिमेंट्स मानते हैं. हमारा नॉलेज एक्सपेंड करता है और हम अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस इन साइंस एवरी टाइम. ओके, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, या फिर आप लोग जानते हैं कि जॉन डाल्टन के टाइम पर लगता था एटम इज अनडिविजिबल. आज हमको पता है हम इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ करके 1200 क्वार्क पार्टिकल्स बना सकते हैं. गॉट इट? बात समझ में आ रही है? सो दिस वाज अबाउट 5 elements, Panch Tattva, the air, the earth, fire, sky, and water, as per the mythological sayings, and we can say ancient sciences. According to them, everything living living or non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers arrived at a similar classification of matter, right? Greek philosophers ने भी इसका classification इस तरीके से किया. But in modern sciences, we have evolved 2 type of classification, that is मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. आज हम मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सॉल्युबिलिटी क्या है, ओके, सच प्रॉपर्टीज आर कंसीडर्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज.
केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसका केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज इट्स एक्शन अगेंस्ट अदर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, उसका एसिड के साथ क्या रिएक्शन है, बेस के साथ क्या रिएक्शन है, सॉल्ट्स के साथ क्या रिएक्शन है, उसका स्टेबिलिटी क्या है, रिएक्शन रेट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on physical and chemical. In this chapter, we will study about the physical properties and physical classification of matter. Clear? Chemical properties of matter will be taken in subsequent chapters. Later, we will discuss in this. And now you people are just going to start, your exposure towards the science. Later on, you will see when you will reach in class, later after completing your 9th, you will be in 10th, 11th, 12th, then graduation. So exploration of science will never end. Okay. We all are having just a very small knowledge of science, but it is we can say it is God, and we are just worshipping our subjects. Okay. Now, physical nature of matter. What is matter made up of? So, matter is made up of particles. The first property, what we have to see here is matter is made up of particles. These are the properties of matter. What sort of properties of matter? Physical properties. Understanding? So, physical properties of matter, physical nature of matter. The first point, what we are having is matter is made up of particles. So what sort of particles? Suppose we are having soil. It is made up of small soil particles. Technically speaking, science के language में अगर मैं बोलूँ तो soil is what? Soil mostly, वैसे तो ये बहुत complicated mixture होता है different substances का, but mostly it is silica, SiO2. Okay, it is SiO2. Understanding? A part of this, yeah. So suppose we are having iron. Okay, it is made up of a number of iron atoms. Clear? In this way. And it is solid, so particles are closely packed. If it is liquid, then particles are thoda at some sort of distance. And if it is a gas, so particles बहुत ज़्यादा distance पर है. Okay. And this time, to safeguard yourself from the impact of COVID-19, you all have to achieve the gaseous behavior, maintain proper distances, right? Gaseous state में बैठिए आप लोग. Fine. Yeah. So for a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of the matter. One school believed that matter is continuous, for example, to be continuous like a block of wood, whereas other thought that matter was made up of particles. And later, the other school of thought, which was thinking that matter is made up of small particles, was proved correct. Got it? So today we know that matter is made up of particles. Let's see the other property. How can we prove? Okay, so let's have a small example. In order to answer these questions, we need to, first of all, you see these questions. What are these? Activity 1.1. Take a 100 ml beaker, fill half of the beaker with the water and level the water. आपने जितना water लिया, उसको आप mark कर दीजिए. Suppose we have taken 50 ml. All right. So 50 ml mark आपने कर रखा है उस पे. All right, this is the mark of 50 ml. Understood? So in this way, here we are having water molecules, and these water molecules must have some intermolecular space. Okay, again another property of matter, that particles of matter are having some intermolecular or interparticular space. Got it? Suppose we are adding some sugar particle or some solute in it. Okay,
सो ये तो शुगर का बिग क्रिस्टल भी हो सकता है. एज सुन एज हमने इसको इसमें ऐड किया, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर, मान लेते हैं हम शुगर ले रहे हैं. हेल्प विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड आप इसको स्टार करेंगे एंड ऑब्जर्व एनी चेंज इन बीकर लेवल. तो बीकर के लेवल में शुगर ऐड करने के बाद, जब हम शुगर डाल चुके हैं, स्टारिंग करने के बाद कोई चेंज नहीं दिखेगा 50 ml पर ईयर. व्हाई इट इज सो? ओके, सी, जब हमने 50 ml मार्क के बाद उसमें शुगर ऐड किया, अभी ये पूरा मॉलिक्यूल है, डिसॉल्व नहीं हुआ है, बहुत ध्यान से समझेंगे. इन दैट कंडीशन लेवल रेज करेगा, लेवल यहां पहुंच जाएगा. बट एज सुन एज आप उसको स्टारिंग करके डिसॉल्व कर लोगे, देन यू विल सी के ये पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा शुगर का, और दैट विल ऑक्यूपाई इंटरमोलिकुलर स्पेस. वाटर जो कि आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं सॉल्यूशन में, तो यहां पर आपका सॉल्वेंट है वाटर और सॉल्यूट है शुगर. सो शुगर के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर स्पेस में, ये जो पार्टिकल्स के बीच में खाली स्पेस है वहां पर चले जाएंगे. ये देखिए ऊपर वाले डायग्राम को नोटिस करेंगे. फाइन, ये जो ब्लैक से मैं बना रहा हूं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, और जो रेड से हैं दोज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. राइट, सो शुगर मॉलिक्यूल्स ने इंटरमोलिकुलर स्पेस ले लिया. अब जब उन्होंने इंटरमोलिकुलर स्पेस ले लिया तो फिर तो वॉल्यूम इंक्रीज होने का कोई चांस नहीं है. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मान लीजिए क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं और इन बीच की जगहों में कुछ और मटेरियल रख दिया जाए तो उसको एक्स्ट्रा वॉल्यूम की जरूरत नहीं है. गॉट इट? चीज समझ में आ रही है? This is the concept of dissolution, and this is why we are not able to observe any sort of change when we are dissolving something in a particular solvent. Got it? So from here we can say that matter is made up of small particles. Second, matter is having intermolecular spaces. ये भी तो प्रॉपर्टी प्रूव हो रहा है. अगर स्पेस ना होता तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के जाने का कोई चांस नहीं था. क्लियर? Let's move forward. फिजिकल नेचर में अभी हम लोगों ने पढ़ा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सेकेंड, ओके, एक एक्टिविटी है. दिस विल गिव यू द आइडिया कि ये पार्टिकल कितने छोटे हैं. एक्चुअली धीरे धीरे जब आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा तो यू विल कम टू नो दैट दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. इवन व्हेन यू आर हैविंग, सपोज आप जो है 12 ग्राम कार्बन लेकर के आते हैं. कार्बन यू ऑल नो, एटॉमिक नंबर 6. ओके, इफ यू आर हैविंग 12 ग्राम कार्बन, देन दैट इज हैविंग 6.022 into 10 with the power 23 particles or atoms of carbon. Got it? This is equal to 12 gram of carbon if we are having this much atoms of carbon. Understood? अगर इतने एटम, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर. विद टाइम यू विल लर्न इट. ओके, अभी जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, आपको लर्न करना ही है. दिस इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल, और ये इतना प्रिपेयर हो जाएगा आपका, आई प्रॉमिस, कि अगर कोई आपको आप सो रहे हो और आपसे नींद में कोई पूछ लेगा व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, यू विल से 6.022 into 10 power 23. You will not wrong mistake in this. Okay, so this is एवोगैड्रोस नंबर. अगर आप हाइड्रोजन ले लें, सो जस्ट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में इतने पार्टिकल हैं. बेटा आपको देखने में ये नंबर छोटा लग रहा होगा, दिस इज अ वेरी बिग नंबर. वेरी बिग नंबर मीन्स रियली वेरी बिग नंबर. मैं उसको टाइप करके दिखाता हूं आपको हाउ बिग द नंबर इज. This is Avogadro's number. Your concept of unit, tens, 100,000 will fail here, right? And this number is known as 1 mole. I will teach you mole concept separately, but अभी ये चीज आ रही है सामने तो मैंने आपको बता दिया. Understood? जैसे मोल क्या है, जब आप बोलते हो 1 डजन, तो डजन क्या है?
A dozen is the collection of 12 items, right? आप जाते हैं मार्केट में बोलते हैं 1 डजन बनाना दे दीजिए, तो वो आपको 12 बनाना देता है. Okay, 1 dozen students, 12 students. 1 dozen teachers, 12 teachers. 1 dozen chairs, 12 chairs. So it is just a collection of items. Okay. In the very similar way, we are having 6.022 10 to the power 23. This is 1 mole. 1 mole atoms means 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Okay. So 12 ग्राम में कार्बन में इतने एटम्स ऑफ कार्बन है 1 मोल, एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है. ऑलराइट, बात समझ में आ रही है? सो सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो आप अज्यूम भी नहीं कर सकते 1 एटम कितना हल्का और कितना छोटा है. अंडरस्टूड? ये इमेजिनेशन का एक्सट्रीम लेवल पहुंच रहा है. फाइन. सो यहां से आपको कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए हाउ स्मॉल द पार्टिकल इज. अब मैं एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर. ओके, टेक अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ सॉल्यूशन. पहले हम सॉल्यूशन किसका बना रहे हैं? सी इन द प्रीवियस पेज. सॉरी, yeah, take 2-3 crystals of potassium permanganate. What is potassium permanganate? This potassium permanganate is KMNO4. Potassium permanganate, okay, KMNO4. It is having some color, right? Let the number of students be normal. I will bring you to laboratory and then I will show you the color of the solution. थोड़ा सा पर्पल टाइप का होता है, ठीक है? पोटेशियम परमैग्नेट. ओके, इसके आपने 2-3 क्रिस्टल लेकर के 100 ml में डिसॉल्व कर लिया. यू विल गेट द पर्पल कलर सॉल्यूशन. एंड नाउ आप उस 100 ml में से पहले आपने वाटर लिया, बस यहीं से एक्टिविटी देख लेंगे. यू हैव टेकन वाटर, यू हैव एडेड सम क्रिस्टल्स ऑफ KMNO4. पूरा 100 ml कलर्ड हो गया. फिर आप यहां से 10 ml लीजिए, दूसरे 100 ml में डाल दीजिए, पूरा सॉल्यूशन कलर हो जाएगा. बस कलर का इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रहेगा. बुक में देखने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, अभी आप लोग सिर्फ बोर्ड पर देख सकते हैं. ओके, ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं. सो 100 ml, बट यहाँ पर कलर थोड़ा फेड हो जाएगा. फिर यहाँ से आप 10 ml लेकर के यहाँ पर डाल दीजिए, अगेन यू विल गेट 100 ml कलर्ड, बट अगेन इट विल फेड. फिर यहाँ से आप 10 ml ले लीजिए, स्टिल इट विल हैव सम कलर और होमोजेनस सॉल्यूशन होगा. इसका मतलब जस्ट जब आप ये डिवाइड कर रहे हो तो 100 ml में 10 का मतलब होता है 1/10. इधर 1/10 है, देन 1/100, 1/1000, 1/10,000. 1/10,000 करने के बाद भी आपका कलर मेंटेन है. ओके, कलर का इंटेंसिटी सिर्फ कम हो रहा है, आपको कलर फेड महसूस होगा, बट कलर है. कलर है इसका मतलब KMNO4 पार्टिकल्स वहां पर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट है. गॉट इट? सो इट मींस कि पार्टिकल बहुत छोटे हैं और वो एक्सट्रीम लेवल पर छोटे हैं. एक्सट्रीम लेवल पर छोटे हैं. मैंने आपको इमेजिनेशन दिया, आप 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लेंगे, 12 ग्राम कार्बन का टुकड़ा इतना बड़ा होगा, एंड दैट विल हैव 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. गॉट इट? सो एटॉमिक लेवल पर चीजें बहुत छोटी हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक है. one day I will show you. सी टुडे जो आज हमारे पास सबसे डेवलप्ड माइक्रोस्कोप है, दैट इज स्कैनिंग एंड टनलिंग माइक्रोस्कोप. ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक वर्जन है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बेस्ट माइक्रोस्कोप्स माने जाते हैं अभी तक की डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग, और उनका डिस्कवरी एम नॉलैंड ई रस्का नाम के साइंटिस्ट ने किया था. ठीक है, 1930s में. सो मैं बात कर रहा था स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. जब आप उससे एटम को देखते हैं तो कुछ इस तरीके का ब्लड इमेज एटम का दिखता है. ओके, मींस आज तक की साइंसेस डेवलप होने के बाद भी हम एटम को क्लियर देख नहीं पा रहे हैं. ओके, आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि पार्टिकल कितना छोटा है वो पार्टिकल. जबकि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप चीजों को इतना बड़ा करके दिखाता है कि आपके पेन के टिप को वो इतने बड़े ग्राउंड के बराबर दिखाएगा जैसे कि 10 फुटबॉल ग्राउंड्स. ओके,
और स्टिल वो एटम को इस तरीके से दिखा रहा है. सो यू पीपल आर क्लास 9th स्टूडेंट्स, इस वजह से मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं. अदरवाइज 10 with the power -15 के ऑर्डर में न्यूक्लियस होता है मीटर्स. ओके, 10 with the power -15 एंड 10 with the power -4 या 5 आप कह सकते हैं के ऑर्डर में साइज होता है एटम का. सॉरी, 10 with the power -10, it is not 5, it is 10 atom. All right, still it is very small. मतलब 1 मीटर का स्केल आप लीजिए और उसके 10 with the power 10 means 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 मीटर के स्केल के इतने पार्टिकल्स कर दीजिए, तब जो एक पार्टिकल होगा वो 1 मीटर की 1 एटम के साइज के कंपेरेबल होगा. गॉट इट? Fine. I think this much is more than enough to give you the idea that how small the particles are. Characteristics of particles of matter. Particles between the matter have space between them. अभी मैंने आपको justify किया how they are having the space. Although you can have different activities for this as well. Particles of matter are continuously moving. Another very important property, beta. No matter it is solid, no matter it is liquid, no matter it is gas, particles are continuously moving. If it is a gas, particles are moving rapidly. उनको स्पेस ज्यादा है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे. इफ इट इज लिक्विड तो पार्टिकल्स के पास स्पेस कम है, फिर भी वो आपस में मोशन कर रहे होंगे. और अगर ये सॉलिड है तो वहां पर पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं. Okay, but still they are moving, they are vibrating, they are having the oscillatory motion. Okay, yes. So how can you prove that particles are having motion? आप अपने रूम में जब इंसेंस स्टिक लगाते हैं, you people know इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती. ओके, इंसेंस स्टिक. सो उसका जो फ्यूम्स होता है वो आपको मूव करता हुआ दिखता है और बहुत जल्दी वो पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाता है. कैसे? विद द हेल्प ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ओनली इट इज पॉसिबल. गॉट इट? आप लिक्विड्स के केस में यही कर सकते हैं. होली में आप जो है कलर जब रेडी कर रहे होते हैं, या फिर आप शरबत बना रहे हैं, आपने स्टाइलिंग नहीं की मगर आपने शुगर वाटर में डाल दिया, तो टाइम ज्यादा लगेगा बट अपने आप वो धीरे धीरे घुल जाएगा. उसमें होता है ऐसा. व्हाई? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल मोशन. ओके, इवन सॉलिड्स में भी ऐसा होता है. हाउ कैन आई प्रूव यू? आप किसी क्लासरूम में जाइएगा जिसमें बहुत समय पहले, मतलब अभी लॉकडाउन हो गया, 4-5 महीने 6 महीने से आपके स्कूल्स बंद है. सो तब अगर लिखा हुआ कोई कंटेंट है व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से या फिर चॉक से लिखा हुआ ग्रीन या ब्लैक बोर्ड पर, राइट, उसको आप रब करेंगे तो दैट विल नॉट इजीली रब. व्हाई? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स भी मोशन कर रहे थे और धीरे धीरे वो उसके अंदर डिफ्यूज कर गया है. उसको रब करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा. फाइन, बात समझ में आ रहा है? फ्रॉम हियर इट इज प्रूव्ड दैट सॉलिड के पार्टिकल्स में भी मोशन होता है. ओके, particles of matter having a space between them. Okay, particles of matter having a space between them. For example, वो मैंने आपको वाटर वाला एग्जांपल दिया. आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं दिखेगा. दिस कैन बी द बेस्ट एग्जांपल. दूसरा प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. थर्ड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इनके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. सारे मैटर में होता है, राइट? लगातार पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. बट अगर वो सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है. सॉलिड में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है. ओके,
मैक्सिमम, देन इन लिक्विड्स एंड देन इन गैसेस। गैसेस क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है बेटा। फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जितने भी होते हैं वो डिस्टेंस बढ़ाने पर डबल हो जाते हैं, सॉरी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, मतलब वो डिक्रीज हो जाते हैं। इधर से रख दीजिए, ठीक है, आ रही है बात समझ में? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं और डिस्टेंस के साथ वो डिक्रीज कर जाते हैं। क्लियर हो रहा है? आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्सेस डिक्रीज कर जाएंगे। क्लियर? Fine students, till now we have seen particles of matter attract each other, and I have told you that solid liquid gas are having means intermolecular interparticular force सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में कम है और गैस में उससे भी कम है। नाउ यू कैन गो थ्रू सम क्वेश्चंस। Yeah, these activities just go through yourself. Very easy activities are there. किसी को कोई डाउट आता है तो आप ऑफलाइन क्लास में हैं तो ऑफलाइन पूछ सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लास में हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? These are few questions. Which of the following are matter? Okay, chair, air, love, smell, hate, almond, thought, cold, cold drink, smell of perfume. So smell of perfume is not matter beta, but particles of perfume are matter. Okay, so कुछ लोग confuse हो जाते हैं और particles में जो smell है वो उन्हीं की वजह से होता है, but only smell, जहां तक smell लिखा हुआ है, so it is not a what? Not matter, right? Air matter है, chair is matter, love not matter, smell no matter, hate no matter, thought no matter, cold no matter, cold drink matter है, smell of perfume no matter, right? कुछ लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। अब स्मेल ऊपर नो मैटर हो गया तो वो स्मेल ऑफ परफ्यूम हो, राइट, या फिर स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड हो, कुछ भी हो, स्मेल तो स्मेल है। हालांकि वो स्मेल आ रहा है पार्टिकल्स की वजह से, मगर जब पार्टिकल्स की बात करेंगे दैट इज डिफरेंट थिंग। स्मेल उनका एक प्रॉपर्टी है, वो मैटर नहीं है, ठीक है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस योर सेवरल मीटर्स, यू फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे। मम्मी किचन में बना रही हैं, आप ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, आपको उनके अच्छे से फूड का स्मेल आ जाता है, राइट? द रीजन इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो अपने साथ वहां से गैस के पार्टिकल्स को स्मेल प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल्स को लेकर के आ जाते हैं। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, राइट? एक ड्राइवर सॉरी डाइवर वाटर को कट करके आगे मूव कर सकता है। व्हाई इट इज? बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस है और वहां पर हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स में फ्लूइडिटी है। What are the characteristics of particles of matter? You already have read about this. Okay, so this is for now. This is it for today, students, and in the next lecture we will see the different states of matter. Thank you. Keep learning, keep watching the videos, keep studying, stay safe, stay healthy, and stay connected. All right. Thank you, class.